الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ ابراہیم کی آیت کریمہ نمبر 32-33 ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیات کریمہ دونوں میں اپنی عظیم قدرت کا، اپنے امتنان، اپنے احسان کا ذکر فرمایا، اور یہ ذکر کر دیا کہ خدا کے بندو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو، کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، شکر ادا کرو۔ کل شکر کے حوالے سے فرمایا وہ نماز کے ذریعے سے شکر ادا کرو، اللہ کی دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے سے شکر ادا کرو۔ آج اللہ نے مزید اس شکر کے حوالے سے تاکید فرمائی، ذرا غور کرو، تمہیں میری طاقت، تمہیں میری قدرت نظر آئے گی کہ میں نے تمہارے اوپر کتنے احسان کیے ہیں۔ اور پھر کل کی آیت میں بھی آتا ہے تم میری نعمتوں کا حقیقت میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہو، تم میرے مطیع بندے تو بنو، عاجز بندے تو بنو۔ تو اللہ نے اپنے امتنان اور اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ، جس سے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، پہلی بات ذکر کی۔ فرمایا اللہ اس عظیم ذات کا نام، عظیم قدرت کا نام ہے جس نے بغیر مادے کے، مٹیریل کے بغیر، آلے کے بغیر، مشین کے بغیر، نمونے کے بغیر اتنا بڑا آسمان بنا دیا ہے۔ فرمایا اس کی طاقت دیکھو، مٹیریل کے بغیر کون کوئی چیز بنا سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا کاریگر بھی ہوگا، وہ اس کو کہا جائے کہ یہ چیز بنا کر دے دو، وہ کہے گا نمونہ دو، مٹیریل دو، پھر اوزار میں لاتا ہوں بنا دوں گا۔ تو تین چیزوں کے ساتھ چیز وجود میں آتی ہے، لیکن اللہ فرماتے میری طاقت دیکھو، اتنا بڑا آسمان، اس کا نہ دنیا میں مٹیریل تھا، نہ نمونہ تھا، نہ کوئی مشین اور آلہ تھا، میں نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو اتنا بڑے آسمان کو بنا کر فضا میں کھڑا کر دیا۔ یہ میری طاقت ہے، میری قدرت ہے۔ تو اس طاقت والے رب کو چھوڑ کر کدھر جاؤ گے؟ اللہ۔ نمبر 2، پھر فرمایا اللہ کا ایک اور احسان دیکھو، اتنے بڑے آسمان کو اوپر بنا دیا، فضا میں معلق کیا، نیچے سمندر سے بخارات اٹھائے، ہواؤں کے کندھوں پہ رکھے، ہوا لے کر فضا میں آسمان کے نیچے لے گئی، اوپر سے میری قدرت کی ہوا نے وہ سمندر کے اندر سے اٹھنے والے بخارات کو فلٹر شروع کیا،
समुद्र में तो खारा पानी था, कड़वा पानी था, उसको ऊपर फिल्टर करके और उसको जमा कर बादलों की शक्ल में एक समुद्र ऊपर ठहरा दिया। फिर मैंने उन्हीं बादलों के अंदर से खूबसूरत पाक साफ शफाफ पानी उतारा है। और मैं, मेरी कुदरत का क्या है तुम करोगे, मेरी एक ताकत है। तो फरमाया मटीरियल के बगैर आसमान, नीचे जमीन, जमीन के दाएं बाएं समुद्र, समुद्रों से बुहारात उठाए, हवा के कंधों पे रखे, ऊपर फिल्टर शुरू किया, उसको जमा कर बहरे मुनजमद ऊपर एक जमा हुआ समुद्र बादल की शक्ल में। वो अगर ना समुद्र तो नीचे होता, इतना वजनी समुद्र मैंने ऊपर ठहराया हुआ। उस समुद्र से मैंने पानी उतारा। व अनज़ल मिनस समाई माअन, उस रब ने फिर ऊपर से साफ शफाफ पानी उतार दिया है। और साफ शफाफ पानी उतारा। नंबर 3, अल्लाह फरमाते हैं उसी बारिश के पानी से नीचे मुर्दा जमीन को मैंने जिंदा करके दिखा दिया, बंजर जमीन को सैराब करके दिखाया, मरी हुई जमीन के अंदर से मैंने रोयदगी, ताजगी पैदा की है। और उस ताजगी की वजह से फिर क्या हुआ, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, फिर पानी ऊपर से आया, जमीन सैराब हुई, जमीन के अंदर से तरह तरह की सब्जियां मैंने तुम्हारे लिए उगाई, तरह तरह के अनाज तुम्हारे लिए उगाए, तरह तरह के फल तुम्हारे लिए उगाए। फरमाया अखरज बिही मिनस समरात, समरात समरा की जमा है। समरा कहा जाता है हर उस चीज को कहा जाता है जो किसी काम, किसी चीज से मेहनत के बाद बरामद हो। फरमाया जमीन से मैंने फिर क्या क्या फल बरामद किया है। फल की शक्लें देखो और फिर अनाज को देखो, गल्लों को देखो, सब्जियों को देखो। मुर्दा जमीन ऊपर से जिंदा कैसे की बारिश से, बारिश और पानी का जोड़, बारिश और जमीन आपस में मिले तुम्हें क्या क्या दे रहे हैं। ये तुम्हें देने वाला कौन, ये जमीन को जिंदा करके उससे तरह तरह की सब्जियां उगाने वाला कौन, तरह तरह के अनाज निकालने वाला कौन, तरह तरह के फल फूल निकालने वाला कौन है। फरमाया इस रब की कुदरत को पहचान, तेरी कोई मेहनत नहीं, मुफ्त में तुझे रब ने सारा काम करके दिया। इसको अल्लाह कहा जाता है ना, इसको अल्लाह की ताकत कहा जाता है। बगैर मादे के आसमान बना दिया, जमीन बना दी, बादलों को फजा में ठहरा दिया, बादलों को फिल्टर करके तुझे ताज़ा पानी दे दिया, उसी ताज़ा पानी से तुम्हारी सारी ज़रूरतें मुहैया कर दी। पानी की शक्ल, नहर की शक्ल में भी, नदी की शक्ल में, बोरन की शक्ल में पानी आ गया और सब्जियां, अनाज, गल्ले। फरमाया इस रब का शुक्र अदा नहीं करेगा तो क्या करेगा। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। फरमाया अल्लाह के शुक्रगुजार बनो, अल्लाह की नेमतों को देखो, अल्लाह की कुदरतों को देखो। साथ अल्लाह ने अपनी तीसरी कुदरत का जिक्र किया, इंसान तूने गौर नहीं किया है, मैंने क्या किया, तू कहता है मैं ये करके हूं, मैं ये करके हूं। फरमाया नहीं, गलती है तेरी, तेरी मैं के अंदर कुछ नहीं है। फरमाया वसख्खर लकुम अल्लाह अल फुल्क लितजरिय फिल बहरि बिअमरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी खिदमत में लगाया। सखरा, उसने खिदमत में लगाया, लकुम तुम्हारे नफे के लिए, तुम्हें नफा दे। कौन? अल-फुल्क, किश्तियां, किश्तियों को तुम्हारे नफे में लगा दिया। और वो क्या करती हैं फिर? किश्ती बन गई, बंदों को भी उठाया, बंदों का सामान भी उठाया, इधर से उधर, उधर से इधर, सब मौजों को फाड़ते हुए जा रही हैं। तजरी फिल बहरि बिअमरी, ये उस रब के हुक्म से चल रही हैं। और फरमाया ये अल्लाह का अमर चल रहा है, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। बड़ी बड़ी किश्तियां हैं, बादबानी किश्तियां हैं, बड़ी बेड़े हैं, बड़ा बड़ी बेड़े हैं, फजाई जहाज़ों से ज़्यादा बड़े बड़े जहाज़ हैं, फिर जहाज़ों के साथ छोटी किश्तियों का ताल्लुक। अल्लाह फरमाते हैं ये मैंने तुम्हारे काम में लगाया। किश्ती को
वगरना तुम्हारी मुकद्दर में इंसान कहता है मैंने किश्ती बना दी, मैंने गाड़ी बना दी। अल्लाह कहता है ना है, ये जितना मटीरियल था ये तुमने नहीं बनाया, ये मैंने बनाया है। लोहा है, तांबा है, पीतल है, लकड़ है, जिससे चीजें बनाते हैं, ये मैंने बना कर दी तुम्हें। और फिर दूसरी बात है, जिन आलात के जरिए से तुम चीजें बनाते हो, ये आलात, ये औजार भी मैंने तुम्हें मुहैया किए हैं। उनका मादा अल्लाह ने दिया है। अगर कुल्हाड़ी ही है, लो कुल्हाड़ी के लिए लोहे की जरूरत थी, लोहा देने वाला कौन? और फिर तीसरी बात, उस मटेरियल को आले के जरिए से करामत बनाया जाए, काम किया जाए, वो अकल की जरूरत है। फरमाया अकल भी मैंने दिया, समझ भी मैंने दी है। और फिर चीज बनाने का तुझे अकल शऊर मैंने देकर चीज बनाकर चीज को तुम्हारे ताबे कर दिया कि चीज तेरे तरीकों के मुताबिक चलेगी, तुझे आगे फवायद देगी। 4 काम मैंने किए और तू नखरे में आ गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तूने क्या किया? तेरे पास तो अगर किश्ती के अलावा गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, तूने तो इसका मटेरियल नहीं पैदा किया, मटेरियल मैंने पैदा किया। मटेरियल के बाद उस मटेरियल को जोड़ने वाले आलात मैंने दिए हैं, उस अकल और दिमाग को मैंने दिया है। फिर मोटरसाइकिल बनने के बाद तुम्हारे इस लोहे को तेरे ताबे किया, चला इसको जिधर चलाता है। फरमाए मैं रब करने वाला था, तेरी ताकत भी नहीं थी कि इस लोहे को तू अपने ताबे इस्तेमाल कर सके। वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन, दूसरी जगह कुरान कहता है। अल्लाह फरमाया ये अल्लाह की कैसी कुदरतें हैं। और वह कहता है अल्लाह की इन कुदरतों के जरिए से अल्लाह इन किश्तियों को जलाता है जिन जिन हित्तों के साथ समुंदर है, बड़े बड़े बादबानी जहाज और वहां लगते हैं और आकर सामान हजारों लाखों टनों का सामान फेंकते हैं। वो बहुत बड़ी बंदरगाह बनकर बड़ी तिजारत का मरकज, वहां लोगों को सबसे ज्यादा नफा हो रहा है। ये आना जाना फरमाया ये किश्ती के जरिए से कौन करा रहा है? किश्ती को समुद्र में डुबोने से बचाने वाला कौन? ये फरमाया ये उस अल्लाह की कुदरत है। ले तजरियल, अल्लाह चलाता है उस किश्ती को समुद्र के अंदर बेअमरी, अपने अमर के जरिए से। उस अमर के जरिए से किश्ती चलती। अल्लाह न चलाना चाहे किश्ती पानी में डूब जाए। फरमाया ये मेरी कुदरत है। इन मेरी कुदरतों को तुम आंखों से देखते हो, गौर करो तो मेरी कुदरत का इजहार करके मेरे आजिज बंदे बन जाओ, मेरा शुक्रगुजारी करो। आगे अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने एक और इम्तिनान और एहसान का जिक्र किया, वसख्खर लकुमुल अनहार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नहरों को तुम्हारी खिदमत में लगाया। नहरें बड़ी बड़ी, दरियाए नील बह रहा है, दरियाए फर्रात, दरियाए दजला, दरियाए फलां, दरियाए फलां, काबल से चलने वाला दरियाए जेहून, तौबा, पूरी समरकंद को, तिरमज को, बुखारा को, पूरे यूरोप और एशिया को सैराब करता है। दाएं बाएं हिंदो पाक को, हिंदुस्तान पाकिस्तान को। दुनिया दंग रह गई है इस पानी से। पता नहीं क्या पानी, बहरे मुंजमद है भी ठंडा, अजीब किस्म की। फरमाया मैंने इस पानी को चलाकर तुम्हारी नेताबे खिदमत में लगाया। जमीन के अंदर से पाइप डाले, ओ बड़ी नहर के जरिए से पानी अंदर अंदर पाइपलाइन से चलते हुए फलां शहर में चला गया, वो उधर से पाइप उधर चला गया। बोरों कर नीचे पाइप की लाइन बहती है कुदरत की। फरमाया पानी निकाल दो, खुदाई कर नीचे से चश्मा निकाल दो। फरमाया ये कौन करने वाला है इस पानी को तुम्हारी खिदमत में लगाने वाला? नहरों की शक्ल में, बोरों की शक्ल में, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर रह रहे हो, अंदर तुम्हें पता ही नहीं नीचे से पानी जा रहा है। और दूसरी जगह कुरान ने ये भी जिक्र किया है, जमीन के अंदर तुम्हारे लिए मैंने तरह तरह के फवायद रखे हैं। और जमीन में भी मरजल बहरैन, एक खारा पानी और मीठा, 2 पानी मैंने चलाई हुए नीचे। खारे के अलग अफायदियत बताई कुरान ने, मीठे की अलग। लेकिन फरमाया बैनहुमा बरज़ख, खारे और मीठे पानी दोनों जमीन में जा रहे हैं नीचे से, लेकिन मैं उनको आपस में मिलने नहीं देता हूं। पानी खराब ना, बैनहुमा बरज़ख, उनके दरम्यान में पर्दा कुदरत का हायल है। ला यबगियान, खारा मीठे पर नहीं, मीठा खारे पर नहीं गालिब हो सकता है। अपनी अपनी हुदूद में रहो। इधर पेट्रोल जा रहा है नीचे से, इधर से पानी जा रहा है, आपस में मिलते नहीं है। उधर खुदाई की पेट्रोल निकल आया है,
मट्टी का तेल निकल आया है, इधर खुदाई की मीठा पानी निकल आया है। अल्लाह कहते हैं मेरी कुदरत को देख, मैंने इन नहरों को तुम्हारी खिदमत में मैंने लगाया। तुम कौन थे जमीन के नीचे से ये नहरें चला सकते? तुम ये कह दो हमने पेट्रोल बरामद कर दिया, हम बड़े जदीद टेक्नोलॉजी वाले हैं। तुम्हारी टेक्नोलॉजी में नीचे से पेट्रोल देता ही नहीं, तुम कहां से निकालते? वो आलात मशीन का वो मटेरियल में तुम्हें न देता, तुम मशीनें कहां से बनाते? मैं ये अक्ल और दिमाग तुम्हें न देता, तुम क्या कर सकते थे? ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है, मेरा बनकर मोती बंदा बनकर चल। मैं तुझे भी चलाता हूं, तेरे लिए आलात भी बनाता हूं। वसख्खर लकुमुल अनहार, फरमाया उस रब ने ही ये नहरें तुम्हारी खिदमत में लगाई। नीचे से नहरें चलती, इधर पानी उधर पानी, इधर पेट्रोल इधर तेल, उसी को बरामद करके तुम्हारी बेहतरीन ऐशो इशरत चल रही है जिंदगी। फरमाया ये करने वाला अल्लाह है, इस अल्लाह को पहचान और अल्लाह की कुदरत को समझ कर अल्लाह का मोती बन। आगे अल्लाह ने मजीद अपने एहसान का जिक्र किया, वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर दाइबैन, फरमाया आसमान में देखते हो जमीन के ऊपर सबसे बड़े दो कुर्रे नजर आते हैं, एक शम्स का सूरज का कुर्रा, एक चांद का कुर्रा। इस चांद और सूरज को अपनी रफ्तार के साथ तुम्हारी खिदमत में लगाने वाला भी रब्बुल आलमीन है। फरमाया सूरज आता है अपनी कुदरत, अल्लाह की कुदरत के जरिए से, वो आती ही धीमी धीमी रोशनी के जरिए से वो तुम्हारे पट्ठों को मजबूत कर देता है। जो तुम्हारे पट्टे रोज़मर्रा इस्तेमाल में कमज़ोर हो गए हैं, उसकी धीमी धीमी इब्तदाई रोशनी सूरज की होती ना, पट्टे मजबूत। खून गंदा हो जाता है तेरी गज़ा के गंदे इस्तेमाल से, फरमाया मैं सूरज के जरिए से तेरे खून की सफाई कर रहा हूँ। तुझे पता ही नहीं है मैंने तेरी खिदमत में क्या लगाया इतने बड़े सूरज को। खून की सफाई हो रही है और फिर जरा तेज गर्म धूप होती है, उस वक्त पट्ठों के लिए तो इतना मुफीद नहीं, और चीजों के लिए मैं उस वक्त फसलों को पकाता हूँ, फलों को पकाता हूँ और फलों को मुख्तलिफ रंग शमसी तवानाई और हीट देता हूँ, हरारत, जिससे चीजें पक जाती हैं। तुमने हंडी के अंदर पकाने वाली बात सीखी है, पूरी कुदरत के अंदर ये हरारत सूरज के जरिए से पैदा करके मैं कितने बागों को, कितने फलों को, कितने अनाज को पका के रख देता हूँ। फरमाया ये मैंने खिदमत में लगाया और सूरज अपनी ड्यूटी के मुताबिक आएगा, अपनी ड्यूटी के मुताबिक जाएगा। अल्लाह फरमाया ये अल्लाह ने अपने कुदरत कामिला से तुम्हारी खिदमत में लगाया। और फिर चांद को भी, रात सूरज गया अपना काम करके, पीछे चांद आया है और सूरज की रोशनी से, उसी हरारत से आज दुनिया फायदा उठाती। कुरान ने तो 1400 साल पहले कह दिया था, आज कहते हैं सोलर एनर्जी है जी, सोलर लगा दो जी, ये शीशे के जरिए से शमसी तवानाई को खींचा जाता, आगे मशीनें चल रही हैं, बल्ब चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। रब कहता है ये मैंने किया, तुम्हारी क्या मजाल थी, ये मैंने। और सूरज गया, पीछे चांद आ गया। चांद की धीमी धीमी रोशनी में रब कहता है मैंने तेरी खिदमत की ओ इंसान। धीमी रोशनी के अंदर मैंने ऐसी तासीर रखी है, ये तुम्हारे अनाज और गले के अंदर आला किस्म के विटामिन डाल देती है ये रोशनियाँ। और फिर तुम्हारे अपने बदन के जोड़ इस्तेमाल होकर ये ख़त्म हो चुके इनकी ग्रीस। और आजकल भी डॉक्टर कहते हैं ये जोड़ के दरमियान में जी फला हो गया, ये जोड़ खुल गया, ये फला हो गया। कुछ भी नहीं, कुदरत इलाही के करिश्मे हैं। और जोड़ इस्तेमाल होकर जब आपस में एक दूसरे से जुदा होते हैं, चांद की धीमी रोशनी आती है, इन जोड़ों में कुदरत के जरिए से, मसामों के जरिए से ग्रीस भर देती है। सुबह उठता है जोड़ ठीक है जी, ये कैसे हुआ है? कुदरत इलाही ने ये काम किया। फरमाया ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुदरत। इस अल्लाह की कुदरत को पहचान, इस अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितने एहसान किए हैं। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, रात और दिन का निज़ाम चलाए। दिन में मेहनत कर, रात को थक के सो जा। रात वाली मेहनत करो, दिन आ गए जी मेरी छुट्टी। फरमाया रात और दिन का अजीब निज़ाम मैंने तेरे ताबी किया हुआ है तेरी सहूलतों के लिए, और तू उस रब को भूल गया है। आगे अल्लाह अपनी मजीद इम्तिनान एहसान का जिक्र करते हैं। फरमाया मेरी नेमतों को मैंने चंद एक गिनी, तुम गिन ही नहीं सकते हो, इतनी है। अल्लाह के मोती और शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अल्लाह हमें अपना मोती बंदा बनने की तौफीक नसीब फरमाए।